इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? Like 9 factorial 1 upon 9 factorial plus 1 upon 10 factorial is equal to x upon 11 factorial. Find out the value of x. Just आपको factorial break करना होता है यहाँ पे, और ये क्लियर कट काफी सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो ग्रेटर नंबर्स होते हैं ना उनके फैक्टोरियल्स को आप ब्रेक करते हो, ठीक है। लाइक दिस क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ट्राई करो। 2n plus 3 factorial is equal to 12 times 2n plus 1 factorial. Find out the value of variable. ये क्वेश्चन ट्राई करो, दिस क्वेश्चन। टू एन प्लस 3 factorial is equal to 12 times 2n plus 1 factorial. We have to find out the value of n. क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ n, या फिर हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस। ऐसे काफी टाइप से क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिकली आपको जस्ट सॉल्व करना। Bhargav, you explain question. Sir, 9 factorial 2n plus 3, बेटा ये नहीं यार, ये क्वेश्चन। 2n plus 3 factorial is equal to 12 times 2n plus 1 factorial. Sir, Find out 2n plus 3 factorial should be splitted into 2n plus 3 into 2n plus 2 into 2n plus 1 factorial. हाँ, and on the right side is this portion is cancelled. Then this and this, ठीक है। Then we have to multiply that 2n plus 3 and 2n plus 2, 4n square plus 4n plus 6n plus 6 is equal to 12, यानी minus 6 is equal to 0 divided by 2, 2n square plus 5n minus का 3 is equal to 0. इसको सॉल्व करो, वैल्यू ऑफ n फाइंड करो। (1 by 2 or minus 3). n is equal to 3 minus 3. No answer so 2 applicable. square plus 6n minus n minus 3, 2n common, n plus 3 minus 1 common, n plus 3. Finally n is equal to half और n is equal to negative of 3. Okay, अब इसमें acceptable solutions क्या है ये बोलो। Half. हाँ, n is equal to half will be acceptable. Again ऐसा नहीं होता कि half fractional number है, fractional numbers allowed नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स, मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, एंड n इज इक्वल टू हाफ पे कोई इश्यू नहीं है। सो दिस एक्सेप्टेबल, ओके, और ये नॉट ओके, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे हो गए थे। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर किया था हम लोगों ने, लाइक प्राइम नंबर, इसका इंडेक्स इन एनी n फैक्टोरियल। Okay, and this expression is n upon p greatest part, n upon p square greatest part, n upon p cube greatest part, n upon p to the power 4 greatest part, and so on. एक टाइम पे आता है ये 0 point something और 0 point something का greatest part 0. important point just इतना सा इसके अंदर कि this is valid only for prime numbers. Composite के लिए valid नहीं होता ये, ठीक है। composite numbers are made up of prime numbers, तो prime numbers calculate करोगे, उनके according composite number design करोगे, ठीक है। फिर बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये सब इंट्रोड्यूस किया था हम लोगों ने। ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो दिस क्वेश्चन। फाइंड आउट द डोमेन, स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0,
this whole number and 2x should be greater than or equal to 2x minus 1. Head cannot be less than tail, यानी head either equals to tail or greater than tail. ठीक है, तो ये भी हो गया. अच्छा, एक दिस क्वेश्चन ट्राई करो, ये भी काफी सिंपल ही है. सिग्मा r फैक्टोरियल from r is equal to 1 to 100 n is divided by 20. ये सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी किए थे हम लोगों ने. n is divided by 20. Find out the remainder. So sigma r factorial from r is equal to 1 to 100, like 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, 6 factorial, up to 100 factorial. अच्छा, ऐसा नहीं होता है ना कि फैक्टोरियल कॉमन और 1 + 2 + 3 + 4 है ना, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 20, देन वी हैव टू फिगर आउट द रिमाइंडर. ठीक है, सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? This is 1, this 2, this 6, this 24, this 120, this 720. अभी इनका कोई यूज है क्या, बोलो? हाँ, these all numbers are divided by या और divisible by 20. तो रिमाइंडर में कंट्रीब्यूशन 0 है इनका. So basically we have to calculate just 4 numbers. Summation is 33 divided by 20. Finally remainder is 13. Clear? Okay. अच्छा, क्वेश्चन ये रहा होता, if n is divided by let's say 19, then find out the remainder. तो ये कहां तक अप्रोच करना होगा आपको, बोलो? If n, हाँ, वो 19 तक अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि 19 प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर सेल्फ मेड नंबर्स होते हैं. तो 19 फैक्टोरियल पे जाके ही फर्स्ट टाइम आपको 19 मिलना स्टार्ट होगा. लेकिन इसके प्लेस पे क्वेश्चन ये रहा होता, इफ n इज डिवाइडेड बाय 720, देन फाइंड आउट द रिमाइंडर. तो 720 यहां से मिलना स्टार्ट हो गया है. 720, तो जस्ट ये नंबर्स कैलकुलेट करो. 120, 24, 6, 2 और 1, ये था 33 एंड 120, यानी 153 डिवाइडेड बाय 720. क्लियरली रिमाइंडर विल बी 153. इसमें कोई डाउट है, बोलो? ओके. Next, this point. Calculate NC0, NCN, NC1, and fourth one is NCN-1. फर्स्ट का आंसर 1, सेकंड का भी 1. करेक्ट है. अगेन हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, n माइनस 0 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल इज 1, दिस इज n फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1. NCN ये कैलकुलेट करते हो, दिस इज आल्सो 1. NC1 विल बी n फैक्टोरियल. जस्ट हाँ, लाइक n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल, यानी कि n माइनस 1 फैक्टोरियल. Now n factorial can be written as n into
n minus 1 factorial. This portion cancel. 1 factorial is only 1 and n upon 1 is n. Okay, ठीक है. This is nc n minus 1. Again head factorial upon tail factorial. Head minus tail, यानी this minus this. So this minus this will be 1 factorial. n minus 1. यार ऐसे नहीं लिखना होता है ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, ब्रैकेट होता है कुछ. n और n cancel, -1 will be +1. ठीक है. Again this n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. This cancel, 1 factorial is 1 and n upon 1 is n. So finally ये है n. अब इसको लन कैसे रखते हैं हम लोग? If tail 0, answer 1. If head is equal to tail, again answer 1. If tail is equal to 1, then answer Head. If tail is equal to head minus 1, then also answer is Head. हाँ. अच्छा एक मिनट और है ना, ऐसा नहीं है कि जस्ट इतना कंडीशन सफिशिएंट है, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड. लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस -2c1, तो यहाँ पे टेल है 1 बट दिस विल नॉट बी इक्वल टू हेड. ऐसे नहीं होता है. तो यहाँ पे ये ऑलरेडी डिफाइन है, या ऑलरेडी डिफॉल्ट है कि एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड. एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड, तभी ये प्रॉपर्टीज वगैरह वर्क करते हैं. ओके, 5th पॉइंट NC2. ये कैलकुलेट करो. n into n minus 1 by 2. करेक्ट है. NC2 head factorial upon tail factorial, head minus tail factorial. Now this n factorial can be written as n minus 1 and then n minus 2 factorial. Stop. ये portion cancel. 2 factorial is 2. Remaining is n minus 1 upon 2. So again, if tail is equal to 2, answer head minus 1 upon 2. ये बेसिक्स है, मतलब थोड़ा डाइट पता होना चाहिए, यूज होता है कई जगह पे. एंड 6th वन इज दिस NC n minus 2. अगेन ये कैलकुलेट करना सेम ही आता है, n minus 1 upon 2. तो इसका स्टेटमेंट फॉर्म होगा लाइक दिस. इफ टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 2, अगेन आंसर हेड minus 1 upon head into head minus 1 by 2. हाँ, लाइक क्वेश्चन है दिस 100C1, आंसर 50C49, आंसर 50. 10C2, आंसर 10 into 45. 10 9 upon 2, 90 upon 2 is 45. Correct. 20C0, 1. तो आंसर 1. 1000C1000, आंसर 1. मतलब इसमें कुछ टफ नहीं है ना, सब सिंपल ही है. ओके, क्वेश्चन ये रहा होता 2n plus 3c 2n plus 2, देन आंसर 2n plus 3. हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है. अगेन टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, टेल इज इक्वल टू हेड माइनस 1, आंसर हेड, यानी 2n plus 3. टू एन प्लस 3c 2n plus 1. Again tail is equal to head minus 2, answer is head minus 1 upon 2. So 2n plus 3 into n plus 1. मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना कि मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ और यूज करना है. ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? बोलो. No sir. अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक NCR,
तो इसको ऐसा भी लिखते हैं ना, लाइक n और यहाँ पे r, और इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाते हैं। ठीक है, तो n r ये सेम है दिस एक्सप्रेशन NCR। C4 कॉम्बिनेशंस या फिर C4 चूज करना, वो नेक्स्ट चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, वहां पे इसको और अच्छे से यूज करेंगे हम। ओके, अच्छा एक टर्म और होता है दैट इज NPR, हियर P फॉर परम्यूटेशंस। ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R factor. R vectorial. हेड फैक्टोरियल अपॉन हेड माइनस टेल फैक्टोरियल। ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR? What will be the relation between NPR and NCR? NCR into 1 by R factorial. R factor. हाँ, so basically अच्छा। this expression कहाँ चला गया? NCR ये रहा। This expression इसको मल्टीप्लाई करते हो with R factorial cancel out and remaining portion is n factorial upon n minus R factorial. That is called as NPR permutations. ये होता क्या है ना, देखो ये ऐसे है कि सपोज करो टोटल 4 पीपल हैं यहाँ पे ABCD, अवेलेबल चेयर्स हैं 3। ठीक है, अवेलेबल चेयर्स आर ओनली 3 चेयर्स। क्वेश्चन ये है, या क्वेश्चन नहीं मतलब सिचुएशन ये है कि ये 4 पीपल हैं, इनमें से जो स्टार्टिंग में 3 आ गए, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे अरेंज होने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। ऐसे स्टार्टिंग में आ गया ABC, तो वो लोग यहाँ पे अरेंज होने वाले हैं। स्टार्टिंग में और क्या पॉसिबल है बोलो? ABD, और क्या पॉसिबल है? BAC. ACD. ACD, और क्या पॉसिबल है? BCD. BCD. ये होता है 4 में से 3 पीपल को चूज करना। 4C3, टेल हेड -1 आंसर हेड, यानी कि टोटल 4 इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशंस। ये 4 कॉम्बिनेशंस हो गए, ABC, ABD, ACD और BCD। इनमें तुम्हें समझ में आ रहा होगा वेराइटी ऑफ पीपल डिफरेंट है। लाइक इसमें ABC का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें बाकी में कहीं पे भी ABC नहीं है, तो टोटल डिफरेंट 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ओके, अभी ABC ये लोग यहाँ पे अरेंज हो गए, तो इनके अरेंजमेंट्स के कितने मेथड्स हैं बोलो? एक बताया था ना, 3 पीपल 3 प्लेसेस, अरेंजमेंट्स के मेथड 3 फैक्टोरियल, लाइक ABC, फिर डिफरेंट अरेंजमेंट है ना। यहाँ पे B को अपने राइट साइड में A फील हो रहा है और B को अपने लेफ्ट साइड में C फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे B के लेफ्ट साइड में तो कोई है नहीं, ठीक है, B की राइट साइड में है C। ओके, बाकी BAC, BCA, CAB और CBA, टोटल 6 अरेंजमेंट्स है। ठीक है, और ऐसे ही इसके भी 6 अरेंजमेंट, यहाँ पे भी 6 अरेंजमेंट्स, यहाँ पे भी 6 अरेंजमेंट्स। टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए? 24। तो उसको बोलते हैं 4 में से 3 पीपल के अरेंजमेंट्स बनाना। 4P3, 4 फैक्टोरियल अपॉन हेड माइनस टेल, यानी कि 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 1 फैक्टोरियल इज 1। डायरेक्ट आंसर है कितना? 24। यार बहुत क्लासिक क्वेश्चंस बनते हैं चीजों पे, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, अभी कुछ प्रॉपर्टीज। Like first point is NCR is equal to NC, N minus R, head C tail is equal to head C, Head minus tail. head minus tail। काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, दोनों को एक्सपेंड करते हो सेम आउटपुट आता है।
like head factorial upon tail factorial, head minus tail factorial. This also head factorial upon tail factorial, head minus tail, n minus r, यानी r factorial. Both expressions are exactly same. ठीक है, तो यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट होता है. लाइक सपोज करो आपका आंसर आ रहा है कहीं पे, लेट्स से दिस 25C 9, और ये ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, देन फिर क्या सर्च करना चाहिए हम लोग को? 25C 16, दोनों सेम ही है ये. ठीक है, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r. सेकेंड पॉइंट, NCR प्लस NCR माइनस 1. इसको वर्ड्स में याद रखो, ज्यादा बेस्ट रहता है. टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड. Two binomial coefficients can be added if their heads are same and difference in tail is 1. Either this case or this case. Head same, difference in tail is 1. Okay, and the result is, क्या रिजल्ट होता था बोलो? n plus 1 CR plus 1. हाँ, बेसिकली अगेन हेड को 1 इंक्रीज करते हैं, n plus 1, and greater tail will be as it is. So what is greater between r and r minus 1? R. What is greater between r and r plus 1? R plus 1. R plus 1. Head is increased by 1 and greater tail will remain same. Okay, इसमें बनते हैं काफी क्वेश्चंस. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है दिस. अच्छा सुनो, जैसे सपोज करो एक्सप्रेशन है दिस, लाइक NCR प्लस NCR माइनस 2. तो ऐसा नहीं है कि इनको ऐड नहीं कर सकते, इनको भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला टाइप फॉर्म नहीं होगा. तो ये इंडिविजुअल कैलकुलेट करो, ये पूरा इंडिविजुअल कैलकुलेट करो, फिर इनको ऐड वगैरह करो. ओके, तो कोई आइडेंटिटी टाइप नहीं है, आइडेंटिटी है केवल इस पैटर्न में. हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, रिजल्ट हेड इंक्रीज्ड बाय 1 एंड ग्रेटर टेल वो एज इट इज. ठीक है, लाइक दिस एक्सप्रेशन 50C5 प्लस 50C6, आंसर 50C6. 51. हाँ, 51C6. करेक्ट है. लाइक क्वेश्चन है दिस. NCR plus 2 times NCR plus 1 plus NCR plus 2 is equal to KCP. Find out all possible pairs K comma P. Find out all possible pairs K comma P. N plus 2 R, CR plus 2. n plus 2 CR plus 2. All possible pairs. Like first pair is this, and other pair can be n plus 2 or N minus R. n minus r. Correct. ओके, सो ये है NCR प्लस 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम. इस 2 टाइम को ब्रेक करते हैं 1 टाइम और 1 टाइम. अगेन यहाँ पे हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, सो दिस विल बी हेड इंक्रीज्ड बाय 1 ग्रेटर टेल r plus 1 प्लस
अगेन ये आप ऐड करते हो, फिर दोबारा दोनों के हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, हेड इंक्रीज्ड बाय 1, ग्रेटर टेल इज r plus 2. अगेन दोनों के हेड सेम, डिफरेंस इन टेल तुम लोगों को दिख रहा होगा 1 है, सो अगेन एडेड head n plus 2, c greater tail is r plus 2. r plus 2. plus 2, and this expression equals to ncr is equal to head c head minus tail, यानी कि this minus this is n minus r. n minus r. करेक्ट है, तो दोनों आंसर्स करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो. वन 4 6 4 1. सेम क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज में ही बनता है. If TR is the rth term of arithmetic progression, then find out the value of this expression. Where TR is the rth term of an arithmetic progression. So 1 4 6 4 1. एक बार ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे दोनों ये 1 1 होना चाहिए. 1 टाइम दिस इज ऑल्सो 1 टाइम, लाइक एक्स्ट्रा कोई कोफिशिएंट्स नहीं है यहाँ पे. So what should be the next step? बोलो. k comma p 29 comma 10 and 29 comma 9. एक बार ये स्टेप बताओ पहले. दिस स्टेप 25c6 प्लस 25c 7. हाँ, अभी ये 1 टाइम यहाँ पे रिमेनिंग है 25c7, ये 3 टाइम्स रिमेनिंग है अभी. और फिर यहाँ पे 3 3 के पेयर्स. अगेन यहाँ पे भी 3 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग, ये फिर 3 पेयर, यहाँ पे 1 रिमेनिंग और ये 1 पेयर. ये क्लियर हुआ? Yes sir. ओके, चलो फिर डायरेक्टली लिखते हैं इसमें ना. So this will be head increased by 1, greater tail 7 plus 3 times 26c 8. Then again 3 8. times 26c 9, again 1 time 26c 10. फिर ये पेयर 1 टाइम, this pair 2 times, in this pair 1 time. 1 time. So this will be 27c8 plus 2 times 27c9 plus again 1 time 27c10. ठीक है, अब ये क्वेश्चन वही हो गया जो जस्ट अभी सॉल्व किया था. Again 1 pair and here also 1 pair. 28c9 plus 28c 10. and now it will be 29c10 equals to 29c 9. 19. 19. 90. So final answer है this. करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k प्लस p. सो इसके अकॉर्डिंग k प्लस p कितना आ रहा है बोलो? 39. एंड इसके अकॉर्डिंग k प्लस p 48. 48. इन दोनों का समेशन, प्रोडक्ट, डिवीजन, कुछ भी पॉसिबल है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. ओके, एक ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं. Tn is the nth term. Tn is the nth term
of an arithmetic progression. Then find out the value of this expression. Again same pattern है 1 4 6 4 1, 1 pair, 3 pairs, 3 pairs and 1 pair. This will be tn और tn plus 1, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स होगा ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस फिक्स होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, and that is d. So this is d or something else. minus d. Minus d. This minus 3d. बेटा प्लस 3d. अभी ये n plus 2 minus n plus 1 होगा ना. Yes sir. This minus minus 3d minus and this d. plus d. Final answer 0. 0. 0. Correct. अच्छा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं ना. NCR plus NCR minus 1 is equal to n plus 1c greater tail यानी कि r. अगेन इसको लन मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको लन मत करना है ना. NCR plus NCR minus 1, ये वर्डिंग्स माइंड में होना चाहिए. हेड सेम होते हैं, डिफरेंस टेल में 1 होता है, हेड को 1 इंक्रीज करते हो, ग्रेटर टेल एज इट इज. तो ये लाइंस माइंड में होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन n और r में नहीं होता हमेशा, है ना, कुछ भी पैटर्न हो सकता है वहां पे. ओके ठीक है. सो वी हैव टू प्रूव दिस. अगेन स्टार्ट करते हैं इसको. ये है n फैक्टोरियल अपॉन r factorial n minus r factorial. This expression is this head factorial upon tail factorial, head minus tail यानी कि this factorial, and finally we have to convert this whole expression is this head factorial upon tail factorial और head minus का tail यानी कि this. ये लेके आना है फाइनली. ठीक है, तो कौन स्टार्ट करने वाला है बोलो. Yes, sir. हाँ शिव सर तुम बोलो. चलो ठीक है बोलो. सर n फैक्टोरियल को एक्सपांड करें. n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल को क्यों एक्सपेंड करना है. n minus r. देखो यार ये दोनों n फैक्टोरियल तो सेम ही. ये है r फैक्टोरियल, दिस इज r minus 1 फैक्टोरियल. सर 1 by r फैक्टोरियल and n minus r plus 1 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे. कॉमन भी ले सकते हो. बाकी राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को जस्ट ऑब्जर्व करो, उसके अकॉर्डिंग भी प्रोसीड कर सकते हो. लाइक यहाँ पे तुम्हें r फैक्टोरियल दिख रहा है ना, ये r फैक्टोरियल ऑलरेडी है, तो ये भी r फैक्टोरियल बनना चाहिए. एंड फॉर दिस टू बी r फैक्टोरियल वी शुड मल्टीप्लाई विथ यार 99 फैक्टोरियल को आपको कन्वर्ट करना है 100 फैक्टोरियल में. क्या मल्टीप्लाई करोगे. 100. सेम दिस r minus 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ r. अगेन तुम चाहो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. r into r minus 1 फैक्टोरियल देन r minus 1 फैक्टोरियल कॉमन, और फिर आगे कुछ तो प्रोसीड वगैरह करते हैं. काफी मेथड्स हैं, जो तुम्हें बेस्ट लगता है कर लो, कोई इशू नहीं है. ये क्या बन गया अभी. r factorial. r फैक्टोरियल दिस एंड दिस कॉमन. ठीक है, और राइट साइड ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे है n minus r plus 1 फैक्टोरियल. सो दिस इज n minus r plus 1 फैक्टोरियल, और ये n minus r से 1 एक्स्ट्रा है.
So now this term should be multiply and divide with n n minus minus r r plus plus 1. n minus minus r plus 1. r हाँ, plus बिल्कुल. And now this component is n minus r plus, plus 1 factor. ये भी कॉमन. स्टार्ट करते हैं. सो ओवरऑल कॉमन टर्म्स आर r फैक्टोरियल एंड n minus r plus 1 फैक्टोरियल. ऊपर से n फैक्टोरियल भी कॉमन. रिमेनिंग n minus r plus 1 n minus r plus 1 and plus r r this r cancel. This is n plus 1. ये n plus 1 इसमें mix and output n plus 1 factorial. n plus 1 factorial. बस हो गया. इतना ही प्रूफ करना था, है ना. अगेन ये प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब थॉट इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चंस में यूज होती हैं चीजें. ठीक है, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ये जो कंसेप्ट है ना कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, बस इतना ही काफी है माइंड में रखना कि ऐसे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये चेंज हो जाता है. ओके, थर्ड पॉइंट. Third point is this, like NCR is equal to n upon r. Or remaining just minus 1, n minus 1 c r minus 1, like 25c14 can be written as 25 upon 14 14 or minus 1 यानी 24c 13. 13. ठीक है, इसको देख लेते हैं. दिस इज n अपॉन r. अगेन हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल. व्हाट इज हेड माइनस टेल? n n minus r minus r. दिस पोर्शन n n factorial. factorial. plus दिस r पोर्शन. factorial. r factorial. r factorial. तो एग्जैक्ट वही एक्सप्रेशन है जो लेफ्ट साइड में है. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर इज n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, इसमें कोई डाउट? फोर्थ पॉइंट, ncx is equal to ncy. Two binomial coefficients are same. अगेन यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा ये है कि हेड्स शुड बी same Same. सेम, तभी कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग. सो फर्स्ट रिजल्ट एंड सेकंड रिजल्ट. फर्स्ट रिजल्ट इज लाइक दोनों के टेल भी सेम है, लाइक 50c40 और 50c40 सेम ही होता है. एक ये भी पॉसिबल है कि 50c40 इज इक्वल टू 50c 10 10. तो यहाँ पे 40 और 10 इनका समेशन 50 50. लाइक NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r. तो इन दोनों का समेशन n लाइक N. 50 minus 20 is equal to 30. तो 20 और 30 का समेशन दिस. सो फर्स्ट रिजल्ट इज लाइक दोनों के टेल सेम. सेकंड, दोनों के टेल का समेशन इज इक्वल टू head हेड. अगेन ये डिफॉल्ट है, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड. ओके, क्वेश्चंस करते हैं. NC7 is equal to NC8. Find out, let's say this 17 cm. ये ट्राई करो क्वेश्चंस.
136. 136. 17 16 upon 2, 17 8 जा जितना आंसर है वो सब करेक्ट है. सो अगेन हेड सेम, फर्स्ट रिजल्ट इज टेल सेम, वो पॉसिबल है नहीं यहाँ पे क्योंकि 7 और 8 सेम नहीं होता. सो 7 + 8 इज इक्वल टू n. n इज इक्वल टू 15. देन दिस एक्सप्रेशन विल बी दिस. यहाँ पे टेल है हेड -2. डायरेक्ट रिजल्ट पता होता है हम लोगों को, हेड हेड -1/2. 17 8 जा दिस. नेक्स्ट दिस ट्राई करो. R is equal to 3. R is equal to R is equal to 4. Equal to 4. ऑल पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करना है जितने पॉसिबल है. 4 है. 4 and 3. अभी तो यहाँ पे जस्ट एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसके प्लेस पे क्वाड्रेटिक होता तो फिर 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस भी मिलने के चांसेस हैं वहां पे. सो हेड सेम, फर्स्ट वन. टेल आल्सो सेम. According to this, r is equal to 4. Second summation of tail is equal to head. 3r minus 2 is equal to 7. r is equal to 3. क्रॉस चेक करोगे इसको एक बार कि स्टार्टिंग क्वेश्चन में तो कोई मैटर नहीं हो रहा है. r is equal to 4 + 1 5. 4 into 2 minus 3 5. 5 5 same, no issue. Okay. r is equal to 3 + 1 4. 3 into 2 minus 3 यानी कि 3. तो 4 और 3 दोनों होल नंबर्स भी हैं. सब कुछ ओके, ठीक है. So finally, 2 possible solutions, r is equal to 3 or 4. next this try करो. R is equal to 3 and 3/2. हाँ, उसमें acceptable solution क्या है वो बताओ. R equal to 3. R equal to 3. r is equal to 3. Okay. First one, both tails same. Second, summation of tails is equal to head. r is equal to 3 और यहाँ पे r is equal to 3/2. तो 3/2 पे तो ये इशू हो जाएगा है ना. 2.5 बनेगा, ये 2.5 तो पॉसिबल ही नहीं है. हाँ, 3/2 एक्सेप्टेबल होता इफ सपोज करो ये एक्सप्रेशन है लाइक दिस, तब कोई इशू नहीं है. ओके. नेक्स्ट दिस ट्राई करो. R equal to 6. R equal to 6. 2r minus 5 is equal to 3r minus 7. Second summation is equal to this. According to this, r is equal to 6 और यहाँ पे r is equal to -2 upon 5. r is equal to +2 आ रहा है सर. Plus 2R. 2 plus 2. Plus 2. Yes, plus हाँ, तो 2 फिर ये ओके है क्या बोलो. No, sir. Negative R. Sir. r is equal to 6 पे कोई इशू नहीं है. r is equal to 2 पे 2 into 2 4 minus 5 यानी कि -1 not allowed. So finally only solution is r is equal to 6. Correct. ठीक है. एक पॉइंट ये भी. दिस क्वेश्चन ट्राई करो. Sigma r is equal to 0 to 49. 49 cr upon 49 cr plus 49 cr plus 1.
So this portion equals to 50 CR plus 1. plus 1. and 50 CR plus 1 can be written as 50 upon R plus 1 minus 1 minus 1. 49C. R. And this 49CR, this 49CR Cancel. cancel. इसका reciprocal will be this R plus 1 upon 50 sigma R is equal to 0 to 49. तो ये कितना का जो complicated type का expression देख रहा था, तो basically काफी simple expression है R plus 1 upon 50. Okay, ठीक है. Summation, sigma, constant, multiplication या division, तो इसको ऐसा बाहर ले सकते हो. और remaining portion है this. ठीक है. Starting with R is equal to 0, this will be 1, then R is equal to 1, 2, then R is equal to 2, 3, finally 50. और यार ये अब हम लोग जानते हैं डायरेक्ट है ना, 1, 2, 3, 4 up to n. कितना समेशन होता है इसका? n into n plus 1 upon 2. हाँ, और ये होता तो n into n plus 1 into 2n plus 1 upon n plus 1 n plus 6. n plus upon 3. 6. this होता तो then n into n plus 1 upon 2 whole square. हाँ, यानी this expression is correct. Upon 50, 50 cancel. Final answer is 51 upon, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुआ आई थिंक इसमें, सब ओके है क्या? 50 upon r plus 1, ये कैंसिल, ठीक है, करेक्ट है. सो फाइनल आंसर इज 51 upon 2. यानी 25.5. Done. Any doubt? What is this? NCR upon NCR minus 1. अगेन इसका स्ट्रक्चर भी एक बार आइडेंटिफाई करो. यहाँ पे हेड सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1. 1 एंड दिस इक्वल्स टू, देखते हैं एक बार बना के इसको, ये है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस R factorial. डिवाइडेड बाय हेड फैक्टोरियल, टेल फैक्टोरियल और हेड माइनस टेल. हेड माइनस टेल इज minus r plus 1. दिस कैंसिल और ये फिर अभी डिवाइड यानी कि रेसिप्रोकल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. न्यूमरेटर इज दिस. Now this point, this component can be written as n minus r plus 1 और फिर इसमें करोगे minus 1 यानी n minus r factorial. n minus r factorial. this portion cancel, ये भी break होगा r and then minus 1 यानी कि this, ये cancel. So remaining is only n minus r plus 1 upon r. n minus r plus 1 upon r. ओके, तो स्ट्रक्चर हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1 और जो ग्रेटर टेल है ना वो न्यूमरेटर में है. ओके, और यही यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे. क्लियर? इसके प्लेस पे ऐसा कुछ है लाइक NCR माइनस 1 अपॉन NCR, देन दिस इक्वल्स टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन n minus r. बेटा इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r या r अपॉन n माइनस r प्लस 1. हाँ, ओके. Like this expression 2nc r plus 4 और यहाँ पे है r plus 3. So head same, difference in tail is 1 and greater tail should be numerator. Okay, and this equals to n minus r plus 1 upon r. N is to n minus r, this r plus 4 and this also
R plus 4. Final answer is this, 2n minus r minus 3 upon r plus 4. 4. Correct है. एक ही क्वेश्चन ट्राई करो, प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाते हैं. NCR minus 1 ratio NCR plus 1 equals to 6 ratio 14 ratio 21. Find out N and R. सेम क्वेश्चन डेमो क्लासेस में भी था, वही क्वेश्चन है. NCR minus 1 ratio NCR plus 1 equals to 6 ratio 14 ratio 21. Find out N and R. ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते हैं कभी भी कि दिस क्वेश्चन है फाइंड N एंड R. ऊपर स्टेटमेंट्स होते हैं, उनके बाद ये रिजल्ट्स आते हैं, दिस एक्सप्रेशन, और फिर आप इसको सॉल्व करके फिर N और R बताते हो. So NCR minus 1 is equal to 6k. NCR is equal to 14k. NCR plus 1 is equal to 21k. 21k. करेक्ट है. अभी देखो डिवीजन वगैरह ही करना है ना, उसका क्यों करना है, क्योंकि वो उसके प्रॉपर्टीज वगैरह है अवेलेबल. कंडीशन जस्ट इतना है कि हेड सेम वो ऑलरेडी है एंड डिफरेंस इन टेल शुड बी 1. तो बेसिकली आप इन दोनों का रेशियो यूज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इन टेल है 2. सो फर्स्ट पेयर इज दिस. हाँ बोलो. P by Q फॉर्म में आता है N की वैल्यू. P by Q. हाँ, N is equal to P by Q. नहीं, मतलब ऐसे आता है फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन में कैसे पॉसिबल है यार, क्योंकि फ्रैक्शन तो पॉसिबल ही नहीं ना यहाँ पे. N Sir, N is equal to 9 और R is equal to 3. N is equal to 9 और R is equal to 3. ओके, देखते हैं. So NCR is equal to 6 upon 14. 6 upon 14 is 3 upon 7. N same, difference in tail is 1. Greater tail is in denominator, यानी कि फॉर्मूला रिवर्स. N minus R plus 1 upon R. ऐसे R upon N minus R plus 1. ठीक है. यहाँ पे भी NCR upon NCR plus 1. तुम चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लो, कोई इशू नहीं है. So this will be 21 upon 14, यानी कि 3 upon 2. And this equals to N minus R. R is R plus 1. So N minus R plus 1 upon R. यार किसी स्टूडेंट को कोई इशू वगैरह है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना यार, है ना. तो ये है 3 by 2.
3n minus 3r plus 3 is equal to 7r, यानी 10r is equal to 3n plus 3, first equation. 2n minus 2r is equal to 3r plus 3, यानी 5r is equal to 2n minus 3, second equation. अभी तुम लोग क्या बोल रहे थे? n is equal to 9 और r is equal to 3, ऐसा कुछ मैच हो रहा है क्या? देखो 9 into 2 18 minus 3 15 और 15, यहाँ पे भी 27 plus 3 30 और 30, करेक्ट है। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इजीली सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई डेट 2 और फिर कुछ प्लस और माइनस। सो फाइनली n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 3. करेक्ट है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। यार देखो ऐसे नहीं होता मैथ्स में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थ्योरीज होते हैं, फिर स्टोरीज होते हैं, फिर कंसेप्ट्स आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इतना ही होता है बस थोड़ा फोकस्ड रहने की जरूरत होती है। कुछ सिली मिस्टेक वगैरह मत करो, इतना काफी होता है। ओके, सो इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ओके देखो समझना स्टार्ट करो। मैं यहाँ पे क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लाइक एग्जांपल है दिस 20C0, फिर आएगा 20C1, फिर आएगा 20C2, फिर 20C3, फिर 20C4 एंड लास्ट में 20C M. 20C20। 20C21 पॉसिबल नहीं है ना, टेल ग्रेटर नहीं होता है। एग्जैक्ट मिडिल में क्या आने वाला है? 20C10। हाँ अभी क्वेश्चन ये है कि अरेंज, अच्छा टोटल कितने टर्म्स हो गए? 21. हाँ ये 21 टर्म्स हैं। क्वेश्चन है अरेंज दीज 21 टर्म्स, अरेंज दीज 21 टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग, जो भी है। असेंडिंग में अरेंज करते हैं लेट्स से, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। व्हाट शुड बी द आंसर? फर्स्ट और लास्ट टर्म इक्वल आता है। हाँ फर्स्ट और लास्ट तो इक्वल है, ये ठीक है। सेकंड और सेकंड लास्ट इक्वल है। यस सर। थर्ड और ये 20C18 भी इक्वल है, 20C3 और 20C17 भी इक्वल है। लेकिन ये तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ ना, ये तुमने इक्वल वाला बताया। क्या असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए? सोच के बताओ अपने आप से। ऐसा नहीं कि सारा ही कैलकुलेट करना है तुम्हें, स्टार्टिंग के 2 3 थोड़ा सोच लो, बस हो गया, इतना काफी है।20C10 greater. मिनिमम टर्म क्या होगा? मिनिमम लोएस्ट टर्म 1. 20C0 and that equals to 20C. 20. Correct. 20C0 और 20C20, tail 0 आंसर 1, हेड और टेल सेम आंसर 1। इससे इंक्रीजिंग 20C1 equals to 20C 19. 19। ये वैल्यू है 1, दिस वैल्यू 20। फिर आप कैलकुलेट करोगे 20C2 टेल 2 आंसर हेड हेड -1/2 यानी 1।
190. 190, फिर 20C3 कैलकुलेट करते हो वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 190 ही आने वाला है. सो बेसिकली ये ग्राफ कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर जा रहा है. और वापस डाउन. These two terms Same. सेम, ये दोनों भी सेम. 20C2 एंड 20C18 भी सेम. टॉप पे टर्म क्या आने वाला है ये बोलो. 20C10. 20C10. इसके इक्वल कोई टर्म है यहाँ पे इस सीरीज में? नो सर. No, sir. ओके. 20C10, ठीक है. 10 और 20 को रिलेट करो. R इज इक्वल टू n/2. ये क्लियर? यस सर. ओके. इसके प्लेस पे क्वेश्चन है दिस. 21C0, 21C1, 21C2, 21C3, एट लास्ट 21C21. यहाँ पे टॉपिक कितने टर्म्स आने वाला है? 22. 2 टर्म्स आएंगे. नहीं, 2 टर्म्स आएंगे सर. 2 terms. And those terms are 20C10 and 20C11. 21C10 and 21C11. (21C10) equals to 21C 11. 11. 10 is related with 21, like 10 is equal to 21 minus 1/2, and 11 is 21 plus 1/2. R is equal to n minus 1/2 and R is equal to n plus 1/2. ये क्लियर? Yes, sir. ओके. तो कंक्लूजन है ये. For NCR maximum, if n even number, R is equal to N/2. if n odd number, then R is equal to n minus 1/2 and plus 1/2. N plus 1/2. हाँ, ये थोड़ा माइंड में रहता है तो ठीक रहता है. अदरवाइज सपोज करो भूल जाते हो तो ये तुम्हें अपने आप से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. कैसे? कोई भी एक एग्जांपल लेके फिर रिलेट करके. बाकी बेस्ट है, इतना सही है. n/2, n minus 1/2 और n plus 1/2. n/2, n minus 1/2 और n plus 1/2. और यार देखो वैसे भी n minus 1/2 और n plus 1/2 ये n इवन में फिट भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इवन minus 1 ऑड नॉट डिविजिबल बाय 2. ये ऑड में फिट नहीं होगा. ऑड अपॉन 2 नहीं होता इंटीजर. क्लियर? ओके. अब क्वेश्चन है दिस. Like 100 CR, maximum 4R is equal to 50. correct. 91 CR, maximum 4R is equal to 45. 45 and 46. 5 and 46. अभी क्वेश्चन है दिस. मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है. थोड़ा सा केयरफुली और आराम से रिप्लाई करना है ना, ऐसा बहुत फास्ट रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है. मल्टीपल करेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज मोर देन वन ऑप्शन ही करेक्ट होता है. एग्जैक्टली वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है ना. ओके.
देखते हैं कौन रिप्लाई करता है इस क्वेश्चन। ऑप्शन ए बी सी। आराम से सोच के रिप्लाई करो बेटा, आराम से सोच के रिप्लाई करो, कोई ऐसा बहुत फास्ट नहीं करना है तुम्हें, आराम से सोच के रिप्लाई करो, ठीक है। Okay, so what should be the answer? आंसर चेक बॉक्स कर सकते हो, चलो देखते हैं क्या आंसर है। Vishwaraj, only option A. Yes, sir. Why not option B and C? दो मैक्सिमम पॉइंट्स। हाँ, तो मैक्सिमम का मतलब क्या मैक्सिमम? दो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं बी और सी के। नहीं, वो तो सेम ही आएगा ना, 11C5। ये डिपेंड करता है ना, एन इवन है या एन ऑड नंबर है। इवन नंबर है तो n अपॉन 2, ऑड है तो n-1 अपॉन 2 एंड n+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। उसके अकॉर्डिंग n कैलकुलेट कर लो। Anyone who is with option D, none of these. इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, none of these, या फिर नॉट डिफाइंड। कोई बताने वाला है क्या रीजन है इसका, ऑप्शन डी का रीजन? सर n कुछ भी हो सकता है। n एक्चुअली कुछ भी हो सकता है यार, n तुम 100 रख दो, 100C5 से बड़े थोड़ी होंगे सब लोग। n तुम 1 करोड़ रख दो, 1 करोड़ C5, ये तो और भी बड़ा आने वाला है ना। यस सर। हाँ, तुम लोगों ने चीज थोड़ा सा ऑब्जर्व नहीं किया, ऐसे सब चीज थोड़ी बताने के लिए होती है। इन ये जितने भी टर्म्स हैं इन सब में n फिक्स है, यहाँ पे भी n फिक्स है। तो ऑब्वियसली बात है ना, सपोज करो आप n को फिक्स कर देते हो 100, तो n फिक्स करने से टेल फिक्स हो जाते हैं, टेल स्टार्टिंग फ्रॉम
0 और 0, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है? 100, 100. 100। लेकिन टेल को फिक्स करने से हेड फिक्स होता है क्या? No, sir. नो सर। नहीं होता ना, वो टेल फिक्स होने पे हेड फिक्स थोड़ी होता है। हाँ, इतना कंफर्म है कि हेड कैन नॉट बी लेस देन टेल, लेकिन टेल से बढ़ के कुछ भी पॉसिबल है। लाइक C5 है, इसको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कोई भी नंबर पॉसिबल है। हेड फिक्स करते हो तो फिर टेल फिक्स हो जाते हैं, टेल फिक्स करने से हेड फिक्स नहीं होता है। ओके, ठीक है। सो फॉर NCR मैक्सिमम, ये इसको लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं, वैसे यहाँ पे एन फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यानी नन ऑफ दीस, या फिर नॉट डिफाइंड। जितना तुम इन्हें इंक्रीज करोगे ना, NCR विल इंक्रीज। हाँ, कहीं पे एन फिक्स करते हो फिर कंपैरिजन करते हो, तो उसके लिए फिर एक्सप्रेशन है n/2, n-1/2, या फिर n+1/2। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज, फैक्टोरियल वगैरह के प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं। इन पे एक क्वेश्चन और कर लेता है, बाकी तो सब सिंपल था। अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये पॉइंट है ना, एक तो दिस क्वेश्चन और एक दिस पॉइंट। इंडेक्स ऑफ 6, 12, 24, बेसिकली इंडेक्स ऑफ प्राइम नंबर इन एनी फैक्टोरियल। ओके, ठीक, ये क्वेश्चन दिस टाइप होता है। NC4, NC5 and NC6 are in arithmetic progression, then find out the value of n. Binomial expansion ये फिर नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करता है ना, नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट। n equal to 12. n is equal to 12। 12 के अलावा भी कोई ऑप्शन आंसर है? देखो, सो क्लियरली AP में है, यानी मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म और लास्ट टर्म। NC4 प्लस NC6, ये डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी तो बनेगा नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंस इन टेल है 2। So only possibility is इसको आप expand करो। So this is n factorial upon 5 factorial n minus 5 factor. next step। Anushka, can you explain this question? n factorial by 4 factorial into n minus 4, n minus 5 factorial कॉमन लेंगे। बेटा कॉमन क्यों लेना है, कैंसिल ही कर दो ना पागल। हाँ, कॉमन लेके कहाँ लेके जाओगे उसे? ये 5 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इज 30 into 4 this is factorial, 5 into 4 factorial। हाँ, और n minus 4 factorial भी cancel। नहीं, n-4 n-6 कैंसिल थोड़ी होगा, cancel होगा। n-6 कैंसिल होगा। दिस हाँ इज सर। n-5
5 into n minus 6 factorial. This is n minus 4 into n minus 5 into n minus 6 factorial. This और this ये cancel. Now remaining portion. 2 by 5 n into n minus minus 5. n minus 5 plus 1 upon plus equal n minus 4 into n minus 5 is plus 1 upon 30. ये सॉल्व कर लो, हो गया क्वेश्चन. टू n minus 8 minus 5 is equal to 1 upon 6 times cancel. This is 12n minus 78. n square minus 9n plus 20. ट्रांसपोजिशन वगैरह ये हो गया अभी n square minus 21n plus 98 is equal to 0. Middle term split factors n is equal to 7 और n is equal to 12. 7 और 12 दोनों के कोई इशू नहीं है. लास्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे बाइनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं. मानस तुम्हें डाउट है इस क्वेश्चन में? यस सर. क्या डाउट है बोलो. सर नहीं. n plus 2c8 ratio n minus 2p4 is equal to 57 ratio 16. Find out the value of n. ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? नील तुम एक्सप्लेन करो दिस क्वेश्चन. सर n plus 2 फैक्टोरियल बाय वो एक्सपांड करेंगे दोनों पहले, फिर कट करेंगे. हेड फैक्टोरियल अपॉन टेल फैक्टोरियल, हेड माइनस टेल यानी कि दिस फैक्टोरियल.
into n minus 6 factorial by n minus 2 factorial. हाँ, ये रेशियो है यानी कि डिवीजन, और ये होता है हेड फैक्टोरियल अपॉन हेड माइनस टेल फैक्टोरियल, यानी कि दिस इज इक्वल टू 57 अपॉन 16. दिस पोर्शन Cancel. n plus 2 factorial ब्रेक करते हैं, n plus 2 then minus 1 then again minus 1 then again minus 1 and then again minus 1, बस यहाँ पे स्टॉप, वो कैंसिल कर, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड दिस इज अभी रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 8 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 57 अपॉन 16 into 8 फैक्टर। So now question is this: n plus 2, n plus 1, then n minus 1, basically 4 consecutive terms इनका multiplication। मल्टीप्लाई करने का ट्राई मत करना वरना 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा ना। ओके, 57 upon 16, 8 factorial is 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1. This cancel. Now remaining is 57, 7, 6, 5, 4 और 3. बेसिकली इन टर्म्स को आप 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में लेके आ जाओ, बस इतना ही क्वेश्चन है। दिस इज 19 इंटू, ये पेयर बनेगा मुझे लगता है ना, ये कितना हो गया 21, 20 और 18, 19, 18, yes. 20 और दिस पेयर 18, so this is basically 18, 20 और 21। इन सब में स्मॉलेस्ट कौन है? n minus 1 n minus 1 equals to 18, n is equal to 90 19। आपको जो शीट सेंड किए थे उसमें शीट 1 उसका सेक्शन 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टोरियल एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, जस्ट 20 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं अभी, है ना। तो 18 क्वेश्चंस है, वो इतना भी होमवर्क में करना काफी है। ओके, बाकी इस चैप्टर में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि ये है थोड़ा बड़ा चैप्टर। हर्ष द टेस्ट डिस्कशन, टेस्ट डिस्कशन बेटा वैसे कल हो गया था, लेकिन अभी भी किसी को टेस्ट डिस्कस करना है तो अभी तुम लोगों का लेक्चर है 1:30 तक, तो 1:30 पे कर सकते हैं हम लोग, 1:32 जब तक होगा कंप्लीट तब तक, ठीक है। yes sir हाँ, विद सेम आईडी पासवर्ड 1:30 पे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है, काम करो 1:45 तक आ जाओ, ठीक है। टेस्ट शीट वगैरह जो भी डिस्कस करना है 1:45 पे, ओके ठीक है। बाकी और भी कुछ डिस्कस करना है तो मेरे को मैसेज कर देना, हम लोग इंडिविजुअल मीटिंग वगैरह रखेंगे। काफी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का शीट डिस्कस कर लिया है, जिनका रिमेनिंग है वो भी कर लेना तो ठीक रहेगा, क्योंकि फिर इसका होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा बाइनोमियल का, ठीक है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ओके बेटा ना।